الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب العالمین۔ عزیزان، آج کا چوتھا درس ہے اس سلسلے کا، قرآن فہمی کے۔ ہم پچھلے درس میں ضروری مبادیات کے بارے میں بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے کہ تجوید کے معنی کیا ہیں اور تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اصل جو مباحث ہیں ان کو۔ تو اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے الفابیٹس ہوا کرتے ہیں، الفابیٹس یعنی الفا بیٹا تھیٹا۔ عربی میں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں اور اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ عربی حروف ہجا کو عام طور پر الف بائے عربی بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا سبق ہمارا متعلق ہوگا الف بائے عربی کے ساتھ۔ الف بائے عربی۔ مختلف زبانوں کے مختلف الفبا ہوتے ہیں، تو کئی زبانوں میں تعداد الفبا کی کم ہوتی ہے، کئی میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن جہاں تک عربی کا تعلق ہے اس میں باتفاق الفبا کی تعداد 28 ہے، لیکن کچھ علماء تجوید نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں 29 ہے، 28 حروف نہیں ہے بلکہ 29 حروف ہیں۔ ہم ان حروف کو ایک ایک کر کے لکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مخارج کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اور یاد رکھیے مخارج کا معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے ہر زبان کے لیے۔ ہر زبان میں پروننسیشن یعنی مخارج حروف، کس حرف کو منہ کے کس مقام سے ادا کرنا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو پروننسیشن کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم موضوع ہے تجوید کے اندر، اس کی طرف آپ مکمل دھیان دیں گے تاکہ صحیح قرآن پڑھ سکیں اور صحیح عربی بول سکیں۔ تو میں یہ حروف لکھتا ہوں، آپ کو لکھنے کی ضرورت ہو تو لکھیے، لکھنے کی ضرورت نہ ہو تو نہیں لکھیے۔ میں 2 رنگوں میں ان کے جو نام ہے حروف کے وہ لکھوں گا۔ 2 رنگوں میں اس لیے کہ کچھ حروف کے مخارج عربی میں وہی ہیں جو اردو کے ان حروف کے مخارج ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگر ہے فرق تو 19-20 کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جن میں مخارج کا فرق بہت زیادہ ہے، اور جہاں مخارج کا فرق زیادہ ہے وہاں ہم ان حروف کو لکھیں گے سرخ رنگ سے۔ سرخ تو آپ کو پتہ ہے کہ خطرے کی علامت ہے، یعنی اس جگہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ خطرہ ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر ادا نہ کر سکیں، اس میں محنت نہ کر سکیں تو خطرے کی بات ہے، صحیح مخارج ادا نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں 2 رنگوں میں لکھتا ہوں۔ آپ
میں نے کہا ساتھ ساتھ لکھے تو ٹھیک ہے, نہیں لکھے تو کوئی ضرورت نہیں, لیکن چونکہ آپ کے پاس دو رنگ نہیں ہیں, جہاں میں سرخ رنگ میں لال رنگ میں حرف لکھوں گا پھر وہاں آپ اس حرف کو گول دائرے سے ممیز کر لیجیے گا.
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان حروف کو پڑھیں. کون پڑھے گا؟ کوئی ایک آپ پڑھیں گے؟ پڑھیے، بیٹھ کے ہی پڑھیے. با تا سا جا ہا ہا کھا دال زال ر زے سین شین صاد زال توئی زوئی عین غین فے خا کیف لام میم نون کیف. رہنے دیں. جو انہوں نے پڑھا کسی کو اس سے اختلاف اگر ہو تو بتا دیں. کوئی ہے جو اختلاف کرتا ہے؟ بسم اللہ بتائیے بتائیے. عربی کے لحاظ سے سب کچھ غلط ہے. جو اس نے بھی حروف ادا کی یہ لوگ سبھی غلط ہیں. ہاں جن کے آخر میں یہ آتا ہے ان کو ہمیں الف سے ادا کرنا ہوتا ہے آخر میں. مثال کے طور پر الف، الف مینس الف ہی. بی ہے چونکہ اس کے لاسٹ میں یہ آتا ہے اس لیے ہم با پڑھیں گے. بڑی ہے بڑی ہے بالکل. جن کے حروف کے اردو میں آخر پر اے کی آواز آتی ہے، بے، تے، سے، اس کی آواز یہ کی تبدیل ہو کے الف میں چلی جائے گی. لیکن جیم میں اے نہیں ہے تو جیم جیم ہی رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہے کو ہم فارسی میں بھی اور اردو میں بھی ہے کہتے ہیں، تو اس کی بھی آواز تبدیل ہو جائے گی الف میں آخر پر. اے کی آواز آخر میں الف میں تبدیل ہوگی. اگر آخر پر اے کی آواز نہ ہو تو جیسا نام ہے اردو میں وہی نام اس کا رہے گا. یہ اس کے عربی والے نام ہیں جو یہ تبدیلی آ گئی. تو اس حرف کا نام ہے الف، کوئی فرق نہیں. اس میں بے ہم اردو میں پڑھتے ہیں جیسے عرفات صاحب نے کہا، اس کا تبدیل ہو جائے گا نام با رہے گا. الف با، تے سے تا، سے سا، جیم جیم ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہے خا بنے گا، خے خا بنے گا، دال دال ہی رہے گا، دال دال ہی رہے گا، رے را بنے گا، زے زا بنے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آخر پر یہ ہے، زے ہے. سین کوئی فرق نہیں، یہ نہیں ہے آخر پر. شین کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آخر پر اے نہیں ہے. صاد وہی ہے جو اردو میں ہے وہی عربی میں بھی ہے. واد کوئی فرق نہیں، وہی نام. توئی کہتے ہیں تو تا بنے گا، زے کہتے ہیں تو زا بنے گا. عین عین ہی رہے گا، غین غین ہی رہے گا، فے کو فا بنے گا، قاف قاف ہی رہے گا. یہ کیف جو ہے ہم کہتے ہیں کیف، اس میں تبدیلی آئے گی. یہ کاف بنے گا، کاف کاف، اور وہ قاف ہے یہ کاف ہے. قاف گلے کے تھوڑا ساتھ میں، کاف اس سے پہلے یعنی سامنے والی طرف، منہ کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں. قاف اور کاف. لام لام ہی رہے گا، میم میم ہی رہے گا، نون نون ہی رہے گا، ہے ہا بنے گا. واو واو ہی رہے گا، یہ یا بنے گا. جہاں اے آواز ہے وہ آ میں تبدیل ہو جائے گی. باقی وہی نام رہیں گے جو اردو میں جو فارسی میں ہے، کوئی فرق ان میں نہیں پڑے گا. اب ہم نے کچھ حروف سرخ میں لکھے. ایک حرف، دو حرف، 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 حروف کے مخارج عربی کے مقابلے میں اردو کے مقابلے میں مختلف ہیں. اردو میں ایک طرح سے ہم پڑھتے ہیں، کشمیری میں بھی اسی طرح، فارسی میں بھی تقریباً اسی طرح، لیکن عربی میں ان کا مخرج جو ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف رہے گا کہیں کہیں. ہم اردو کی فی الحال بات کر رہے ہیں. لہذا جو یہ سیاہ رنگ میں لکھے گئے حروف ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے مخرج میں اردو کے اور عربی کے. لہذا ان میں پریشانی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اگر ہے کہیں کوئی فرق وہ 19-20 کا فرق ہے، وہ زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن جو بالکل فرق ہے وہ ان لال رنگ میں لکھے ہوئے حروف میں ہے. سا میں ہے،
खा में है, दाल में है, स्वाद में है, वाद में है, ता में है, ला में है, आइन, गैन और वाव। वाव इनमें फ़र्क है, तो इन पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम यहाँ भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आप साथ साथ में दिल ही दिल में भी साथ साथ पढ़ें, और बाद में ज़ाहिर तौर पर भी जब मैं पूछूंगा तो उस वक्त ज़ाहिर तौर पर भी आप पढ़ें। तो इसलिए हम ये वाले हुरूफ जो हैं ब्लैक रंग में लिखे हुए, इनको हम फ़िलहाल मिटाते हैं क्योंकि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ का ख्याल रखें, उर्दू में हम वाव पहले लिखते हैं, हा बाद में लिखते हैं, लेकिन अरबी में हा पहले लिखी जाती है और वाव बाद में लिखी जाती है। ये भी याद रखें, एक नुक्ता। अच्छा, अब एक एक करके लेते हैं। देखिए, कुछ मुंह के आज़ा मखारिज के अदा करने में बहुत अहम है। नंबर एक ज़ुबान है, और ज़ुबान के कई हिस्से हैं। ज़ुबान की नोक है, ज़ुबान के बीच वाले जहाँ ज़ुबान ऊपर को उठती है वहाँ दूसरी जगह है, तीसरी जगह है उससे थोड़ा पीछे, फिर जब हुरूफ या हलक शुरू होते हैं उससे पहले एक और जगह है। ये ज़ुबान में ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको सही ढंग से इंसान इस्तेमाल करे तो मखरज सही मकाम से निकालने में आसानी रहती है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है दांत। दांतों में सबसे अहम जो जगह हैं वो है ये ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत, दो ऊपर दो नीचे। इनको अंग्रेज़ी में इंसिजर्स कहते हैं, इंसिजर्स, और अरबी में इनको सनाया कहते हैं, सनाया। सनाया में नीचे वाले और ऊपर वाले। अंग्रेज़ी में इंसिजर्स अपर एंड लोअर, अपर इंसिजर्स, लोअर इंसिजर्स। अपर इंसिजर्स को अरबी में कहेंगे सनायल औलिया, यानी सनाया अल औलिया। औलिया मतलब ऊपर वाला, सनाया अल औलिया जब मिला के पढ़ेंगे कहेंगे सनायल औलिया। और नीचे वाले जो हैं इनको कहेंगे सनाया सुफला, नीचे वाले इंसिजर्स। याद रखिएगा, सनाया। ये 2 और 2 4 दांत बहुत अहम है। ये कई एक हुरूफ में इस्तेमाल होते हैं, और सही ढंग से इनको इस्तेमाल करे आदमी तो मखरज किसी भी हरफ का जो इसके साथ मुतल्लिक़ हो, उन कहीं 4 हरफ एक ही जगह निकलते हैं, उनका मखरज सही निकलेगा, सही तरीके से इस्तेमाल अगर करे। तीसरी अहम चीज़ है इंसान का हलक, गला जिसे कहते हैं, थ्रोट। थ्रोट के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से, बिगिनिंग ऑफ द थ्रोट, मिडल ऑफ द थ्रोट एंड द एंडिंग ऑफ द थ्रोट। बिगिनिंग इब्तिदा में ये जो यहाँ होता है ना, ये इसके शुरू से, और बीच में जहाँ फूलता है आपका थ्रोट, जब आप थोड़ा सा फूलना चाहेंगे अपने थ्रोट को, अपने गले को आप बड़ा करना चाहेंगे, आप कर सकते हैं, तो वो मिडल थ्रोट है। और नीचे जहाँ आपकी दस्तरस नहीं होती है उसको हम लोअर थ्रोट कहेंगे। लेकिन अरबी में इनका नाम है, पहले वाले को अदनल हलक। अदनल हलक इब्तिदा को कहते हैं, इब्तिदाई हलक को अदनल हलक कहते हैं। अदना, अलिफ दाल नून या, अदना, या पढ़ी नहीं जाती है, अदनल हलक। बीच वाले को कहते हैं औसतुल हलक, औसत यानी बीच वाला, औसतुल हलक। और नीचे वाले जो आखिर पर नीचे, यानी जहाँ फिर इंसान के फेफड़े शुरू होते हैं या उसका ट्रैकिया शुरू हो जाता है, फेफड़े का ऊपर वाला वो जो पाइप होती है उसकी तरफ जब चला जाता है, हलक ख़त्म होता है, उसको आक्सल हलक कहते हैं, आक्सल हलक। ये अल्फाज में लिखूँगा ताकि आप सही खुद भी लिख पाएंगे। ये है सनाया, सनाया, और इसके 2 सनाया अल उलिया और सनाया अस्सुफला।
असुफला, सनाया अल उलिया, सनाया अल सुफला। फिर हलक के बारे में हलक के बारे में आदना, आदना यानी नज़दीक वाला, आदनल हलक। ये अलिफ पढ़ी नहीं जाती है, अलिफ मकसूरा। आदनल हलक, औसतुल हलक, औसत बीच वाला, ये लफ्ज़ हम उर्दू में भी कभी इस्तेमाल करते हैं। औसत आमदनी, बीच वाली, एवरेज, एवरेज, यहाँ बीच वाला मुराद है, मिडल। औसतुल हलक। उम्मीद है आपने याद रखा। सनायल उलिया और सुफला, दो ऊपर वाले सामने वाले दांत, दो नीचे वाले दांत। फिर आदनल हलक, इब्तिदाई हलक, इब्तिदाई गला। औसतुल हलक, बीच वाला गला, बीच में गले का बीच वाला हिस्सा। और आखिर पर अक्सल हलक, अक्सा, अक्सा। और इसके बाद जो चीज़ और अहम है वो चीज़ है डाढ़ें। डाढ़ें यानी जो कि गम्स कहलाती हैं अंग्रेज़ी में, गम्स। दांत की जड़ जो होती है वो गोश्त नुमा चीज़ की, आधा गोश्त और आधा वो टकटकी वाली हड्डी, उसको डाढ़ें कहते हैं उर्दू में। आप समझ रहे कि वो भी अहम होती है। कई जगहों पर वो आवाज़ निकालने में, ख़ास आवाज़ निकालने में मददगार रहती हैं। अगर उनको इस्तेमाल न किया जाए तो आवाज़ सही नहीं निकलेगी। उसको अल्लिस कहते हैं अरबी में, अल्लिस, सा से। अल्लिस, डाढ़े, अल्लिस यानी गम्स, अंग्रेजी में गम्स कहेंगे, उर्दू में ढाढ़े कहेंगे। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा, अगर दोबारा बताने की ज़रूरत है। कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अहम मसला है। सही से आप समझ गए ना मेरे ख्याल में, बहुत अच्छे। अब शुरू करते हैं एक एक करके। ये जो पहला हरफ है सा, 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 ये पहला हरफ ज़ुबान की नोक ऊपर वाले सनायल उलिया के साथ, इनके किनारे के साथ, ये टिप जो इसका है, दांतों का टिप, उसके साथ लगाइए ये ज़ुबान का टिप और सनाया अल उलिया का टिप। इन सीजर्स के टिप के साथ ज़ुबान की नोक लगाए, ज़ुबान की टिप लगाए और फिर आवाज़ निकालिए, सा, 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 सा। अंग्रेज़ी में अगर इसका ट्रांसलिट्रेशन किया जाएगा, ये हरफ सही मखरज से अदा करने में मेहनत लगेगी, एकदम से सही नहीं निकलेगा। इसका ट्रांसलिट्रेशन जो है, यानी दूसरी ज़बान में अगर इसका प्रोनाउंसिएशन दिखाना हो, अंग्रेज़ी की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वही है जो TH की है, थ्रू में, थ्रू, थ्रू, थ्रू। आई वॉन्ट टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, थ्रू नहीं है ये थ्रू है, थ्रू। आई वॉन्ट टू गो थ्रू दिस exercise. Have you learned this word thoroughly? ये वही आवाज़ है।
अच्छी तरह समझ लीजिए, मेहनत कीजिए, साथ साथ दिल में साथ साथ में पढ़िए। बाद में मैं कहूँगा ऊंची आवाज़ में पढ़िए, तब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सही कीजिए। था थुम्मा आमीन थुम्मा आमीन। हम पढ़ते हैं आमीन सुमा आमीन, ये बिल्कुल गलत है। आमीन सुमा आमीन पढ़ते हैं हम, हालांकि वो सही नहीं है। ये असल में है आमीन थुम्मा आमीन थुम्मा आमीन, आमीन थुम्मा आमीन थुम्मा आमीन, थुम्मा थुम्मा थुम्मा। इस्मुन इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, इस्मुन इस्मुन। अक्सर अक्सर थर, अक्सर अक्सर नहीं, अक्सर थर थर। मेहनत करनी है, एकदम से ये काम नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। ये सा है, सा। अक्सर व बेशतर ये वाले हरूफ हम सही नहीं बोलते हैं, अक्सर व बेशतर। और जिसकी तजवीद में बहुत प्रैक्टिस ना हो, चाहे वो अल्लामा भी हो, सही नहीं बोल पाता है। अक्सर सुम्मा इस्मुन, थुरैया 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 थुरैया। कान से अच्छी तरह सुनिए, जब आइडेंटिफाई करेंगे आवाज़ तब बोलने की कोशिश कीजिए। थुरैया। साकिब नजमुस साकिब, नजमुस साकिब, साकिब चमकता हुआ सितारा, नजमुस साकिब साकिब। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी साकिब अकबर, साकिब अकबर। हम कहेंगे मेरा नाम साकिब अकबर है, और वो नाम नहीं है, वो कोई और नाम है। साकिब साकिब, था 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 था। ठीक है कि नहीं? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने साथ बोलते रहिए। जितना ड्रिल हो जाएगा, जितना रिपीटेशन हो जाएगा, उतना धीरे 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 हल्के से होने से बेहतर होती जाएगी। 100वीं बार जैसा होगा उससे बेहतर 101वीं बार होगा, 101 बार होगा। जितना बेहतर 110 बार होगा, 10वीं बार होगा, उससे बेहतर 111वीं बार होगा। सा इस्मुन साकिब। अथर अथर मुअत्थर, अथर। अल्लाहु मुअस्सरुन, अल्लाहु मुअस्सरुन। यानी असर देने वाला है अल्लाह, और कोई मुअस्सर नहीं है। मुअस्सर असर देने वाला। असर, इसका असर क्या निकला जी? इसका असर क्या निकला? उर्दू में आप ऐसे नहीं बोल सकते, उर्दू में आपको बोलना होगा इसका असर क्या निकला। वो उर्दू की प्रोनाउंसिएशन है, उसमें कोई आप उसमें बदल देंगे, उसमें मत बदलिए। ये सिर्फ अरबी में आप बदलेंगे। मा हुवल असरु फी हादा, मा हुवल असरु फी हादा। इसमें क्या असर है? इस काम में, इस चीज़ में क्या असर है? मा हुवल असरु फी हादा। असर 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 असर। चला थोड़ा सा सबके सब थोड़ा ऊंचा बोलिए। असर। इस्मुन इस्मुन साकिबुन साकिबुन। आपको क्या मालूम हो रहा है? तब्दीली आ रही या नहीं? अच्छा, एक चीज़ तब्दीली आ रही। दूसरी चीज़, आपको अब एतमाद अपने ऊपर आ रहा है कि हम बोल सकते हैं। कोई मुश्किल, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल मालूम हो, इंसान की दस्तरस से बाहर नहीं है। इंसान की जो दस्तरस है, उसकी दस्तरस से बाहर नहीं है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ने इंसान में बहुत सलाहियतें रखी हैं। अगर उनका आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप कहेंगे मैं उड़ भी सकता हूँ। कई मामलात में आप उड़ते भी हैं। जब एक्सीलेंट ग्रेड आप लेते हैं, किसी भी काम में हासिल करते हैं, तो मतलब हुआ कि आप उड़ गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लिहाजा कोशिश कीजिए, बिल्कुल दुरुस्त पढ़ेंगे आप। असर
सा सा सा। दांत की नोक जबान के ये जो है इसके नीचे से लगाइए, बाहर मत निकालिए। सा, जुबान को बाहर नहीं निकालना। सा सा। और जितना आप ठोस के जुबान डालेंगे ना इस दो दांतों के साथ ठोक के बहुत दबाव के साथ लगा, उतना अच्छा निकलेगा। सा 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 सा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला जो हरफ है ये वाला है, ये भी हम आम तौर पर सही नहीं बोलते हैं क्योंकि इनका मखरज हमें पता नहीं है, और अगर पता है तो उस पर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल ये है अवसतुल हलक से। अवसतुल हलक मगर कैसे? जैसे एक कोबरा वाला सांप हलक में फूंक भर के बड़ा करता है हलक को, इसी तरह आपको अपना हलक बड़ा करना होगा। फिर पफ के साथ, हवा को एक पफ के साथ बाहर निकालना होगा। हा 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 हाये हाय्युन हाय्युन हाय्य अलल फलाह। थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन पहले पहले, बाद में तकलीफ नहीं होगी, ये पहले पहले तकलीफ होती है। इस बेचारे हल को आदत नहीं है ना, आप इसको आदत कीजिए, ये जब अडेप्ट हो जाएगा इसके साथ, एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो थ्रोट की मसल्स हैं उन मसल्स को एडजस्टमेंट हो जाएगी, और फिर हस्ब ज़रूरत आपका जो गला है बीच वाला वो फूलेगा भी सिकुड़ेगा भी, फूलेगा भी सिकुड़ेगा भी। महयुद्दीन महयुद्दीन महयुस्सय्यात महयुस्सय्यात हाज़िरुन हाज़िरुन। गले को थोड़ा बड़ा कीजिए। हाज़िरुन, बहुत अच्छी, शाबाश, बहुत अच्छी। हाज़िरुन हक़ीरुन होता है ना, हक़ीर फ़क़ीर, हक़ीरुन। यहाँ दोनों अल्फाज एक साथ थोड़ा हल्क के ही हैं, एक बीच वाला है, एक उसे पहले से पहले वाला है। हक़ीरुन 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 हक़ीरुन। हा हा सा हा सा हा। ठीक है ना, समझ आ गया? समझ आएगा निस्फ काम हो गया। प्रैक्टिस करेंगे और 3/4 काम होगा। प्रैक्टिस जारी रखेंगे पूरा काम हो जाएगा, 100%, 100%, मियाँ बिल मियाँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट, आप भी परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या बनेंगे आप भी परफेक्ट? इंशाल्लाह। क्या गलत बोला? इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, बहरहाल ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। तो अगला लफ्ज़ क्या है? अगला हरफ, अगला हरफ है दाल। सा और जाल का मखरज एक ही है, सिर्फ आवाज़ में फ़र्क है। इसमें आवाज़ निकाली नहीं है, आवाज़ यानी साउंड निकालनी है। इसमें खाली साउंड के बजाय एक हिसिंग होगी, सा हिसिंग, सा, लेकिन इसमें आवाज़ निकलेगी, लेकिन तकरीबन उसी तरह जिस तरह इसमें निकलती है। हादा, बहुत मेहनत करनी है। दाल, जहाँ सा है वहीं था, दाल 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 दाल। हाँ, हादा ज़ालिका हाजा, ज़ालिका हाजा। 2 हरफ हैं, 2 लफ्ज़ हैं, बिल्कुल आम, कुरान में भी बार बार आए हैं। इनको अच्छी तरह पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक हो जाएगा।
दालिका, ये ज़ालिका बोलना सही नहीं है। हम अक्सर बोलते हैं ज़ालिकल किताब, ये सही नहीं है, गलत है। ये कुरान के साथ और अरबी के साथ जुल्म है। जो भी बोलेगा ज़ालिकल किताब, हाजा बोलेगा, उसने जुल्म किया, अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, ना अरबी से और ना कुरान के साथ। हादा कुल आऊज़ु, कुल आऊज़ु, शाबाश। मेहनत करेंगे ठीक हो जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा। या आप ऐसा, कभी ऐसा भी होता है आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है इंसान को अपनी जगह एहसास होता है, ओहो मुझे तो बहुत अच्छा आया, मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मैं तो परफेक्ट हूँ। और ये होती है ओवर कॉन्फिडेंस, और ये सही नहीं होता है, गलत तासुर होता है। फिर इसी के साथ जब वो कुछ देर रहता है तो कुछ देर के बाद वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तब वो जब वो गिर जाता है तब उसे पता चलता है मुझे क्यों ये ख़राबी पैदा हो गई, ये क्या हो गया। ये असल में ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा होता है, जिसको अरबी में उजुब कहते हैं। ये उजुब का नतीजा होता है। उजुब, उजुब यानी मैं हूँ या मैं भी हूँ, इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए इस चीज़ से। इस चीज़ से सबसे बुरी चीज़ आमोजिश के मैदान में, सीखने के मैदान में, इल्म के मैदान में सबसे बुरी चीज़ यही है, उजुब। हादा, 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 ज़ालिका, 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 हादा ज़ालिका, हादा ज़ालिका, हादा ज़ालिका, हादा ज़ालिका। अगर आप जहाँ जहाँ भी बैठे हैं तो चूँकि डिस्टेंस जो रहनी है वो रह रही है, कम है या ज़्यादा है, तो आप ये अपनी मास्क जो है ये थोड़ा नीचे कर सकें ताकि मैं देखूँ आप मुँह की मूवमेंट सही है या नहीं है, मैं फिर आपकी तस्कीर कर सकता हूँ। हादा, हादा, हादा ज़ालिका, तासीरुन, 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 तासीरुन। ये ता क्यों किया हमने, तासीरुन क्यों, ये थोड़ी देर के बाद ये भी समझाऊंगा मैं। फिलहाल ये मखरज बस। इसके बाद ज़ाल के बाद जो ये हरफ है, ये इसमें भी हम गलती करते हैं। हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना, बिल्कुल गलत पढ़ते हैं ना आमतौर पर। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल। आप ज़रा गौर कीजिए, इस तरह मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे बताइए दो हरूफ में से कौन सा हरफ है। सुनिए, पहले दो चार बार सुनिए। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, सिरात, सिरातुन, सिरातुन। अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। ये ज़ुबान जो है, ज़ुबान या तो ये नीचे वाले दांतों के पीछे रहेगी या ऊपर वाले दांतों की तरफ उठेगी। जब उठेगी उसको हरफ़ी इस्तिला कहते हैं, जब नीचे रहेगी उसको हरफ़ी इस्तिफ़ाल कहते हैं। इस्तिफ़ाल और इस्तिला। इस्तिफ़ाल नीचे रखना, ज़ुबान को नीचे रख के पढ़ना। इस्तिला ज़बान को उठा के पढ़ना, उठा के सामने ज़बान वाली टिप को ऊपर उठाना। ऊपर कहाँ उठाना, ऊपर वाले जबड़े की तरफ। और जब नीचे रखना हो तो कहाँ, नीचे वाले दांतों के जबड़े के नीचे हिस्से की तरफ ज़बान को लेना। नीचे रखना है तो इस्तिफ़ाल, ऊपर रखना है तो इस्तिला। आप मुझे बताइए, जो मैंने पढ़ा मैं फिर पढ़ता हूँ, आपको बताना होगा ये मैंने इस्तिफ़ाल किया या इस्तिला किया। सिरातल लज़ीना, सिरात, स्वाद की उस पर नज़र रखिए। सिरातल लज़ीना, सिरात, सिरात, सिरात। ज़बान मेरी ऊपर थी या नीचे? तो फिर ये कौन सा हर्फ बना, हर्फ इस्तिफ़ाल, हालांकि हर्फ इस्तिला है। ये हर्फ जो है ये हर्फ इस्तिला है, न कि इस्तिफ़ाल। ये हर्फ इस्तिफ़ाल नहीं है, ये हर्फ इस्तिला है। इसका मतलब है कि जो ज़ुबान है, ज़ुबान आगे से उठनी चाहिए।
ज़ुबान आगे से उठी यानी टिप की तरफ से, नो की ज़बान की तरफ से ऊपर उठी तो हरफ को, जो हरफ निकलेगा उसको हम हरफ इस्तिआला कहेंगे। हरफ इस्तिआला, 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 ये आप नोट करें। इस्तिआला, इस्तिआला हमसे नहीं पढ़ी जाती। इस्तिआला तो स्वाद जो है ये हरफ इस्तिआला है, लेकिन मैंने पढ़ा हरफ इस्तिफाल के तौर पर। इस्तिफाल, इस्तिफाल, इस्तिफाल का मतलब क्या है? मैंने ज़बान को सुफला की तरफ ले लिया, सुफला की तरफ, नीचे की तरफ। हालांकि मुझे औलिया की तरफ लेना था। औलिया और इस्तिआला एक ही क्लास के लफ्ज़ दो, इस्तिफाल और सुफला एक ही क्लास के दो लफ्ज़। ये इसके साथ इस क्लास का है और ये इस क्लास का है। अब जब मैंने सीन स्वाद इस तरह पढ़ा तो ये हरफ इस्तिफाल बन गया और फिर इस हरफ के साथ जुल्म हो गया। अगर मैंने अमदन पढ़ा होता, अमदन मतलब यानी अनजाने में ही क्यों ना हो, अनजाने में ही क्यों ना हो, मगर जाहिल मुक़स्सिर बन के, तो उस सूरत में मैंने इसके साथ जुल्म किया था और मैं बख्शिश लेने का हकदार था, उम्मीदवार था कि ये मुझे बख्शेगा। हुरूफ भी, उनका भी अपना आपसे वो लेना देना होगा। आपने हमारे साथ इंसाफ किया या जुल्म किया? हर कोई चीज़ पकड़े ही, हर कोई चीज़। मुआखज़ा वहाँ का बहुत सख्त होगा, काफ़ी सख्त होगा, जानबूझ के ज़्यादा ही ख़तरनाक। अनजाने में इसलिए ख़तरनाक कि जाहिली मुक़स्सिर है, आप पढ़ सकते थे, सीख सकते थे, जान सकते थे, क्यों नहीं जान लिया, क्यों नहीं सीख लिया? मैंने जवानी भी दी थी, अल्लाह पूछेगा। मैंने आपको एक सलाहियत भी दी थी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, आपके उस्ताद भी थे, अगर आप तलाश करते तो क्यों नहीं किया? तो उसमें भी मुजरिम, जानबूझकर तो ज़्यादा ही बड़ा मुजरिम। तो इसलिए होश में आइए और जो करना चाहिए वो कीजिए, किसी चीज़ के साथ जुल्म मत कीजिए। और सबसे बड़ा जुल्म वो है जो कुरान के साथ जुल्म होगा। कुरान के साथ किया हुआ जुल्म सबसे बड़ा जुल्म है। सही है कि नहीं है? सही है ना? तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। इंशाअल्लाह अपना दर्स कल जारी रखें। एक सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला